we are ISCA, Indian Specialized Counseling Academy. Archika and Ashima, trying to make a difference on Mensa for the people. Good afternoon, Archika. Hi Ashima, how are you? I'm good, Archika, and I think we are on to the sixth session of the 20 episodes series which we are having. So, ladies and gentlemen, good afternoon. We are on to the sixth session of the series wherein we're talking about romantic relationships. And this week, Archika, we would be talking about the problems in the relationships, the various aspects of problems in the relationships, and how we can deal with them. And today we are talking about feeling disappointed and angry. So, anger and disappointment are very important components of a romantic relationship or a couple relationship. And that is how it is what makes us to go, it makes us to change for good or bad. So, Archika, feeling disappointed and angry, do you think it really happens to a lot of people in the relationship, or it is something which is normal and it is okay to be like? I guess it happens with almost everybody. Not very often, but once, twice in a relationship, it happens with everybody. With us also, it must have happened. We must have gone through the same emotion and feeling. We can't avoid it because we are human being. Emotions are there and feelings are there, and anger is a kind of emotion and feeling only. So I think it has happened with everybody, and it does happen with everybody. What do you say? So we Because nothing is perfect in this world. and Deepak with us, Archika. Let's hear from them. Yeah. As you're saying that anger and disappointment are something which is absolutely going to happen in any relationship, but how we take care of them is how it is going to decide. Iftikhar, good afternoon, and Deepak, good afternoon. Yeah, good afternoon, ma'am. Do you hear the topic? Do you see what is the topic, Deepak? Yes, ma'am. I had never been in a relationship, ma'am. So I I can't tell. नहीं आप रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं मगर क्या आपको अपने बाकी रिलेशनशिप्स so when you say I've not been in a relationship, I understand that you're talking about a couple relationship or a romantic relationship, right, with a woman, Yes, right? That's what we're talking about. yes, ma'am. Yeah, no, but Deepak, you have been into other relationships, siblings, parents, friends. So do have you ever felt that anger and disappointment? मैं disappoint नहीं होता हूँ किसी से. Uh, Okay, that's a wonderful thing. That's very good. That's very good. Iftikhar, what about you? Good afternoon, Iftikhar. Can you mute? No, unmute rather. Archika, I think Iftikhar is not able to unmute or he's not able to hear us. So Ashima, what do you think? I'm really impressed when Deepak said कि मैं कभी disappoint नहीं होता relationship में. But actually, Deepak, can you elaborate कि what do you mean? आपको क्या लगता है कि disappointment किस चीज को हम कह रहे हैं? ऐसा क्या फील करते हैं कि जिसे हम कहते हैं disappointment हो रही है हमें और आपको लगता है कि अच्छा ये मेरे साथ नहीं हुआ है कभी? And we would like to have, insight about this because this is something very मतलब एक feeling एक emotion है but हमारे साथ नहीं हुआ है तो मतलब that means you have a very good control on yourself, your emotion, your feelings, your expectation, जो भी factors इस चीज में काम कर रहे होते हैं उसके आपको काफी awareness है, काफी insight है and you know what is going on, how to control things, how to manage yourself in a situation. So can you put some light on it? Any uh, relationship, your parent, sibling, anybody. yes, ma'am. मैं ना बहुत spiritual हूँ. तो Hmm. मैं मेरे को अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल ज्यादा है और मेरे को गुस्सा भी बहुत कम आता है. नहीं आता ही नहीं है गुस्सा. तो इस वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होती किसी से. और ये कैन आई आस्क कि आप हमेशा ऐसे थे या देयर वाज समथिंग कि यू गॉट दिस चेंज इनटू योरसेल्फ? ये
करके। तो उसके वजह से मैंने मेडिटेशन चालू किया और बहुत सारी चीजें ऐसे चालू की, तो इसके वजह से मुझे ये बदलाव मिला। ओके, तो इससे पहले तो आप में ये फीलिंग थी, मतलब आपने एक्सपीरियंस तो की है कभी ना कभी लाइफ में, राइट? हाँ। ओके, सो हम उसी की बात कर रहे थे दीपक कि ये होती है तो क्या होती है। नाउ यू आर आउट ऑफ इट एंड यू नो हाउ टू कोप। आपके पास एक कोपिंग स्ट्रेटेजी थी, आपने वो अप्लाई की एंड आप वो बाहर निकल आए उससे। बट इसका मतलब ये कि आपने क्या, कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जो आपने की? मेडिटेशन था। What disorder, और Deepak, you said you had? OCD. Oh, OCD, it is also something which is very, very difficult to understand for a lot of people. So, Deepak, if you don't mind, can you tell us what you used to do in OCD? I have a very different kind of OCD. It's a sexual OCD in which Hmm. Yeah. Hmm. ज्यादा Hmm. गिल्ट फील होता था मेरे को, क्योंकि मैं इतना गंदा बच्चा हूँ करके। Okay, all right, all right. So, you know what? Basically, they say our sexual and our spiritual, they start from the same place, right? हम जो अपना बेस बोलते हैं, जो अपना कुंडलिनी का बेस बोलते हैं, जो रूट चक्रा हमारी बॉडी में, आप इफ एज यू आर डूइंग मेडिटेशन, you must be aware that there are 7 chakras in our body, major 7 chakras. Root chakras is the down on the below the spine, where you have your the sex organ of sex, and that is where they say the shakti of the entire human being rests. And the last, which is on the top, is Srahasrara. You have to reach to the top, and if you reach to the top, you make that super conscious to awaken, and you become a super conscious human being. And I have started this journey of trying to understand myself. So I had this Swami Vivekananda's book Raj Yoga being read. I'm going to read Patanjali, Ashtanga Yoga. I have another channel which has got stalled. So, what you're talking of absolutely makes sense, because we have that animalistic instinct, Deepak. और वहीं से ये एंगर और डिसअपॉइंटमेंट आता है। और अगर आपको मालूम हो, दीपक, थैंक यू ब्रॉट इन अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं तो वो चीट करते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, वो अपने पार्टनर को चीट करते हैं, एंड दे हैव द सेक्सुअल अर्ज ऑफ गोइंग टू द अदर पीपल, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा वो लगता है कि वो फिजिकली डिससैटिस्फाइड हैं। बट ऐसा नहीं होता है, because our knowledge of our own beings, our own self is so limited that हमारा कनेक्शन हमारे खुद के दिमाग से नहीं बनता है। और ज़्यादातर लोग रिश्तों को अवॉइड करते हुए, मेजर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हुए, दे जस्ट थिंक दैट सेक्स इज गोइंग टू हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। एंड आई थिंक वहीं पर मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, एंगर होता है, मगर there are more sources of anger and disappointment. And we have one more people. Iftikhar has not been able to mute, and we have Muzammil. Muzammil, good afternoon. How are you doing, dear? I think you've come to our circle for the first time. Muzammil, can you unmute? Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. So you have been here. I'm seeing here you here for the first time. I think you're new to Menza also, is it? Yeah, it's right. I am new to Menza. I just know that from Instagram. Oh, Basically, I am good, from good. Kerala, and I just scrolling the reels, and I saw that like a app called Menza. Hmm. In free counseling, there is conversations, etc. I think just ended. What happened? What's going here? Just Hmm. just a curiosity to know what's happened. So, So what just brings you ended. here? What is it that you want to work on, improve on, and understand about yourself that brings you here? Muzamil, right?
Yeah, Muzammil. Yeah. I think mm, I have so many problems, and I can't sleep properly. Uh, Mm. Around 2 3 years, I Mm. just sleep for 2 hours night, and Mm. if I sleep 2 hours, that sleep not well, just uh, not You're sub. proper You're, sleep. mm. What is it that is disturbing you, Muzamin? Is it some relationship issue or your childhood problem? Something? I think these all the problems I have. I have childhood problems. I have skin disease, and I have breakups and friendship breakups, family issues. Mm. All the things are I have, What do you, if you were to talk about and yourself? I already visit psychiatry, and I had tablets, but that not work Muzamil, me. what have you been diagnosed of? Have they told something to you that you have anxiety, or what exactly do you have? Have they been able to Uh, understand? Yeah, go on. I think I consider I think I have depression, anxiety, something suicide Hmm. tendency, lot of things. Hmm. So, what are the things did you discuss with the Did you visit a psychiatrist or a Yeah, psychologist? yeah. I visit psychiatry department, and they gave tablets, and Hmm. then 2 3 weeks, around 1 month. Hmm. I take tablets, and that's not working. And Hmm. then they tell that just take a counseling, Hmm. and I go to the counseling, Hmm. and I just started to speaking, but Hmm. they don't consider us, and they don't hear me right. Hmm. They don't Muzamil? have time to me. Hmm. Muzamil, uh, Yep. keep coming here every day. And now, if you have been doing, I don't know, but if you can start writing the things which disturb you, which cause sleeplessness for you, or which kind of make you anxious, start writing them in numbers 1, 2, 3, and see how many issues, whether they are of your childhood, whether they are of now, whether they are of breakups, what kind of issues are there. Just make a whole list, and then slowly we'll try to see that if they can all disappear slowly. And you will I have to get connected to yourself, Muzammil. You I will have think to I start already doing. do. I think I already do this. One time I went to the hospital. I see a sister Hmm. in a church, and they told me that just write down the problems daily. If Hmm. today I read the problem, I write the problems, then next day, excuse me. I think Muzamil is somewhere at Chika. So Yeah. I think we will take Muzamir on the way. There are many things which we can see with him. So slowly, going back to anger and disappointment, guys, communication breakdown. Now, like the way Muzamil is talking about, and the way we have people happening, जब एक कम्युनिकेशन नहीं होता है तो एंगर और फ्रस्ट्रेशन होती है. मान लीजिए एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कर रहा है. इफ अ चाइल्ड वांट्स टू टॉक टू द पेरेंट्स and the parents don't have a time and he wants him to celebrate what he or she is doing, or he or she wants to ask for an advice, and if the parents say अभी नहीं बेटा बाद में आना, अभी नहीं, अभी हम बहुत बिजी हैं, और अगर बार बार ऐसा होता रहे और बच्चे को माँ बाप टाइम ना दें, दे डोंट गिव दैट रिस्पेक्टिव टाइम विच द चाइल्ड नीड्स, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक वो डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाएगा, एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, और वो एंगर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. तो उसमें क्या होगा, वो जब एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो उस बच्चे को ऐसा लगेगा
that these people are not going to be taking care of me. They really don't love me. They don't really think anything about me. And in the same way, if we were talking about the romantic relationship, if there is a communication barrier and if the couple are not able to talk, like we were taking a case that day, that if a girl and a boy, they are going together, if a man and a woman, and if there is a communication gap, that if there is, the man is wanting to meet the woman every day, or he is instantly making programs of meeting each other, and the woman is not able to communicate कि भाई मेरा ऑफिस है, काम है, मैं नहीं आ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन और एंगर बिल्ड होता है. और अगर ये बार बार होता रहे, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड सेइंग यार मेरा ऑफिस है, आई एम बिजी, आई कांट कम, सो जब भी प्लानिंग बनानी हो वीकेंड का बनाओ ताकि मुझे पता हो. अगर ये कम्युनिकेशन बिल्ड ऑन हो जाएगा तो एंगर और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा. नाउ देर आर समथिंग कॉल्ड अनमेट एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. अगर जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ कि भाई हर हफ्ते एक पार्टी करेंगे, हर हफ्ते वील मीट, हर हफ्ते वील टॉक and give time to each other because we are a couple and it is important that we give time to each other, then probably the problems will resolve. मगर अगर वो लड़की को उसको फिर ऑफिस वीकेंड पे जाना है, अगर उसको वीकेंड के ऊपर जो प्लान बनाना शुरू हुआ, फिर वो उसका बॉस ने बुलाना शुरू कर दिया और वो नहीं बोल पा रही है, अब फिर से एक और बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर हो गया. अभी वो लड़का बोलेगा भाई आए वो यू सेड वीकेंड का प्रोग्राम बना, अभी जब वीकेंड का प्रोग्राम बना रहे आप तुम बोल रहे हो नहीं अभी फिर ऑफिस जाना है, तो he'll say कि भाई what is this, she's not ready to meet me, does she really love me, does she really have anything for me. So that unmet expectation will start causing that anger and disappointment in the relationship. और अगर ये होगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा. अब वो पहले लड़की ने बोला भाई हफ्ते हफ्ते नहीं, रोज रोज नहीं आ सकती हूँ, यू विल हैव टू फिक्स इट ऑन अ सैटरडे, एंड सैटरडे मीटिंग फिक्स किया, चलो वील मीट ईच अदर एवरी सैटरडे, अभी फिर से सैटरडे भी ऑफिस जाना है. अब क्या होगा अर्चिका, कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट. सो कम्युनिकेशन हमने फिल इन किया, मगर एक अब वापस से फिर एक अनमेट एक्सपेक्टेशन आ गई और उसकी वजह से अब एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, isn't it? और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है. अब यहाँ पे क्या होगा, वो लड़का जो है वो कह रहा है यार ये तो मुझे मिलती नहीं, इज शी रियली इन लव विद मी, डज शी रियली वांट टू बी विद मी, इज शी रियली केयरिंग अबाउट द रिलेशनशिप और नो. अभी वो किसी और किसी जगह में कुछ सोचना शुरू कर देगा, एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट की. यहाँ पे वो ये सोचना शुरू कर देगा कि कहीं ये इसका किसी और के साथ कोई अफेयर तो नहीं है, रिलेशनशिप. और दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि वो खुद ही सोचे नहीं भाई छोड़ो, दिस गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड, लेट मी गो फाइंड समबडी एल्स. तो यहाँ पे एक इनफाइडेलिटी हो सकती है, देयर कैन बी अ डिसीट इन द रिलेशनशिप, और उस वजह से एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है इस रिलेशनशिप में. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है लैक ऑफ एप्रिसिएशन. अगर एक इंसान रिश्ते में सब कुछ किए जा रहा है, सब कुछ किए जा रहा है, मगर दूसरा इंसान उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसको लगता है भाई ये तो काम ही है. ऐसा शायद होता है कई रिश्तों में, है ना, दैट इफ अ कपल इज देयर and the man is doing something or a woman is doing something for that matter. अगर एक married couple की बात करते हैं तो a woman is who's a housewife is working 24/7. अब वो जब 24 घंटे काम कर रही है, वो खाना भी बना रही है, सब भी कर रही है, but nobody is appreciating her. तो एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, एक इमोशनल अपहीवल और डिसअपॉइंटमेंट होती है. और इस वजह से क्या होता है, दीज आर कॉल्ड अनएड्रेस्ड इमोशंस. दीज फेस्टर, जैसे एक जख्म होता है, एक जख्म पे अगर दवाई नहीं लगाएंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे तो क्या होगा, दे विल ग्रो ओवर टाइम and they will have negative feelings and the emotions would be suppressed, or they would be, there'll be an emotional withdrawal. और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, सिचुएशंस चैलेंजिंग हो जाएंगी, और शायद कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने का डर रहेगा, खतरा बना रहेगा. अर्चिका, डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does, Ashima, but ऐसे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में राइज हुआ एंड आई वांट टू आस्क एवरीबडी दैट व्हाट डू यू थिंक जो ट्रिगर्स होते हैं एंगर के रिलेशनशिप्स में, वो मेल और फीमेल के सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं?
दिस इज अ वेरी दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी। और आप लोगों को क्या लगता है कि जो मेल में जो एंगर वाला ट्रिगर होता है वो किस फीलिंग को लेके रिलेटेड होता है, और जो फीमेल का जो ट्रिगर होता है वो क्या सोच के आता है उसको? क्या रीजन दोनों के सेम होते हैं? प्लीज फर्स्ट आई वांट यू टू आंसर। आपके व्यूज क्या हैं, देन आई पुट फॉरवर्ड माय थिंग। व्हाट डू यू थिंक आशिमा, सेम होता है क्या? Archika, when we talk about the mind, that's a very beautiful question. First of all, let me appreciate. कहीं ऐसा ना हो कि मैं appreciate ना करूं और अर्चिका सोचे आशिमा तो मुझे appreciate ही नहीं करती है. So guys, it is really important to Then I will appreciate. get angry. हाँ नूर बोलती है सेम लगते हैं. Okay. Okay, so she'll have to come and talk, no अर्चिका, कि सेम होते हैं कि नहीं होते. आप या पहले अब बात करते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन आशिमा व्हाट यू गेव उसमें जो एक क्वेश्चन निकल के आता है और उसी में आंसर भी छुपा हुआ है। तुमने जितनी चीजें एक्सप्लेन की ना सिचुएशन को लेकर, उसमें वो आंसर छुपा हुआ है। और तुम एक्सप्लेन भी करती जा रही थी, वो सिचुएशंस भी एक्सप्लेन कर रही थी, आंसर्स भी कर रही थी। तो आई एक्सप्लेन इट लेटर, बट फर्स्ट आई वांट टू नो अगर किसी को कुछ बताना है। Great, absolutely, please. एनीबॉडी? नो? मैं फीमेल के बारे में नहीं बता सकता, मैं मेरे बारे में बता. हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। ज्यादा ईगोइस्टिक हूँ, तो जो मेरे अच्छा। ईगो को हर्ट करता है तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कभी कभी होता है. पर आपकी ईगो इतनी फ्रेजाइल है कि इतनी जल्दी हर्ट हो जाती है? मैं उससे मोटिवेशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब करूंगा. तो उसके बीच में अगर कोई मेरे को बोलता है जा बेटा पढ़ ले, तो मैं एकदम अच्छा नहीं लगता है मुझे. तो ये ईगो नहीं हुई है सर, दैट इज यू आर गेटिंग इनटू सम अदर थिंग। ईगो इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जो शायद आप कंसेप्ट जो आप मिक्स कर रहे हो, आप अपने साथ भी ये गलती कर रहे हो कि शायद मेरी ईगो हर्ट हो जाती है। बट अगर अर्चिका, आप ये किसी से दीपक was saying this. Deepak या was saying. दीपक वाज सेइंग दिस थिंग, बट एनीवेज विल डिस्कस इट लेटर व्हेन यू वांट टू डिस्कस। जब आप डिस्कस करना चाहोगे तभी आपको हम बताना भी चाहेंगे। सो रोहित इज देयर। रोहित, यू वांट टू शेयर और यू वांट टू present your views? I think when there is a comparison with somebody else, that triggers to a man. That's what I think. When your partner compares you with somebody else, that's the triggering point. और फीमेल्स के साथ कैसा होता है? वही होता है? Yeah, females do get triggered when they are compared. They get more triggered. ओके, सो ऐसा लगता है कि जैसे ठीक है, तो फिर वो एंगर होता है, उसमें एंगर आ जाता है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, yes, get frustrated. दैट्स नाइस। इफ्तिकार इज सेइंग डिफरेंट होता है। इफ्तिकार कैसे डिफरेंट होता है, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? वैसे तो जो ब्रेन, ओके, इफ्तिकार इज हियर, गो ऑन इफ्तिकार. हेलो. यस सर जी. हेलो मैम. वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसका डिफरेंट होता है फीमेल का गुस्सा वगैरह, क्योंकि अभी किसी फीमेल के साथ कोई मर्द का बहस होता है, झगड़ा हो जाता है, तो मर्द तो वहां पे भूल जाता है, ठीक है हो गया बहस खत्म करो, लेकिन फीमेल उसको याद रखती है. वो कभी दूसरे लड़ाई में वो सोचती है तो बड़ा हथियार है, बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे इसको, तो वो भूलती नहीं है. और उसको दूसरी लड़ाई में फिर वो पुरानी बातें आ जाती है, फिर उसके ये लिए बात एक तो सही घंटा है. और लड़ाई होती है. ये बात तो सही है. फिर वो मतलब सारे तीसरी गड़े लड़ाई में मुर्दे, सारे गड़े मुर्दे निकाल के सारे बाहर ले गड़े आते. मुर्दे निकाल देती है. पूरी महू बन जाता, कब्रिस्तान बना देती हैं औरतें हैं हाँ, फीमेल्स, लाइक कि ये तब हुआ था, ये तब हुआ था, ये तब कहा था, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था। नाउ यू आंसर अगेन, स्क्रैच से आंसर देना शुरू कीजिए।
Okay, that's interesting. What do you say, Ashima? See, when you talk about the scientific evidence, it is said that for women to transfer from one side of the brain to the other is very easy. She can be multitasking, she can be doing 100 things together, she can be taking care of her children, she can be taking care of the husband, she can be taking care of the job, she can be taking care of the kitchen, and so many things. But for men, it is very difficult. If they are in their right side of the brain, they will remain there. If they are in their left side of the brain, they will remain there. That is why they say the needs and wants of men are very different. And they are very easy. Go on, Rohit. Always want commitments of everything. Who? Girls. Commitment मांगती हैं. हाँ, हर चीज पे. Why do they want? जब वो रिलेशनशिप में होती है तब मांगती है कि रिलेशनशिप पे आने के लिए कमिटमेंट मांगती है? आने के लिए भी और रहते हुए भी. why they want सारी एक एग्जाम्पल दोगे? कमिटमेंट मतलब क्या? कमिटमेंट तो जब आप रिश्ते में हो तो कमिटमेंट है. You know, when you are committed. Actually, like see, how can I? Once No, I it's was in a okay. relationship. रोहित, उससे पहले एक बात बताओ, क्या लड़कों को कमिटमेंट नहीं चाहिए होती है from a girl that you should be just mine, you'll not go here and there. I'm your man, so I'll be your man only. No, You have to be commitment one. चाहिए होती है. Boys, men actually want commitment, but अभी से how can you see the future as long see in the situation? कमिटमेंट मतलब तुम ही मुझसे शादी करोगे, हम दोनों के साथ जो मर्जी हो जाए, हम दोनों रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे. Yeah, that's the case. Okay, so मतलब मतलब आप चाह रहे हैं कि चलो देखते हैं रिश्ता कहाँ तक पहुंचेगा, फिर सोचेंगे, डिसाइड करेंगे. लड़कियां जो हैं रिश्ते में पड़ते ही कहती हैं चलो जल्दी शादी करो रिश्ते को. हाँ, yes, है ना. ये फर्क तो है लड़के और लड़की में. उसका कारण ये है कि हमारे समाज Because अभी जैसे I am 24 right now, and 2-3 years back I was therein. So she was asking ki commit me like this, and how can I'm not settled. How can I do this thing? You know. Right. But can we say this, sorry Ashima, can we say this, रोहित, की कमिटमेंट तो दोनों साइड होती है, शायद उनकी थोड़ी बड़ी होती है और अपनी छोटी. नहीं, but इतनी बड़ी कमिटमेंट कैसे कोई दे सकता है इतने इनिशियल स्टेजेस में. और if you are in a relationship, रोहित, and after 6 months girl saying कि यार I want to move on, ये ना नहीं चल रहा है, then you say कि अरे अभी तो हम रिलेशनशिप में थे, कमिटमेंट तो थी. ऐसे थोड़ी हो जाता है जब तुम्हारी मर्जी तुम छोड़ के निकल लो. हाँ, तो उसमें मैं भी तो अपनी कमिटमेंट दे ही रहा हूँ, तो मैं लेकिन किसी चीज को दे ही रहा हो. Here comes it कि मैंने भी तो दी है और तुमने भी तो मांगी है. बट ठीक है, वहां पे हम थोड़ा सा एक वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ जो बॉयज और जो मेल फैक्टर होता है, देर थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा वो फ्रीडम वाला चाहिए होता है उनको. एंड वीमेन्स दे वांट थोड़े से बैरियर्स हो जाएं, थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाएं, थोड़ा लाइंस डाल देती हैं वो. But Is it like that? Like marriage and all is a big commitment. You can't commit in 6 months of relationship. We have a comment from Deepak. He says, Ashima, what do you help in? What's that? Vansh Patel, Ashima, do you help in DMs too? If someone wishes to share something and they don't want to get recorded, can they do it in your personal DM? No, in that case, you'll have to reach Iska professionally. You can DM and then we'll give you, because then there'll be a professional charge. Our team will take care of it, dear. Here it is a free platform, open, transparent platform where we have people talking, and we know this is helping a lot of other people who have joined the circle, because nobody is going to judge you, nobody is going to think anything. But yes, if you have something which you want to discuss, if it is small, we can definitely try to give you a rye and all. But if it is big, definitely our professional team can help you. There is a process of doing that, Vansh. That's not a problem. Absolutely no problems. Going back to what you were having a discussion with Rohit, Archana.
So I think Basically, I'll explain, Ashima, now what it is. The triggers जो होते हैं different, and I want everybody to just let me know if they can correlate with it or not, and if they think कि अच्छा ठीक है ये होता है कि नहीं होता है. Please clarify this. What I absolutely. Ashtika, you talk about triggers, and then Rohit, yeah. I'll come back to you. Why girls ask for commitment and when guys are not ready. Yeah. So जो मेल आशिमा व्हाट यू आर सेइंग जो स्टोरी और जो हमने केस स्टडी हमने प्रेजेंट की एंड यू आर एक्सप्लेनिंग एवरी पार्ट यू नो थोड़े उसकी निटिग्रिटीज में भी तुम जा रही थी और तुम कर रही थी तो कहीं ना कहीं जो मेल का जो फैक्टर था और जहां पे वो चाह रहा था वो ये था कि पार्टनर्स नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू देम और दे आर नॉट मीटिंग देयर इमोशनल नीड वहां पे वो एंगर ट्रिगर हो रहा था राइट Let me एंड जो clarify. It can be both ways. लड़का भी ऐसी जॉब में हो सकता है जहां पर कि Yeah, correct. yeah. So first way is this कि ट्रिगर बार बार वहीं से आ रहा था एंड जनरली भी जो पार्टनर्स होते हैं मेल पार्टनर्स उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन यू आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू देम एंड उनकी जो इमोशनल नीड है मतलब जब उनको उन्होंने बोला कि यार मुझे फोन पे बात करनी है 1 मिनट बात कर ले एंड गर्ल इज लाइक नहीं नहीं अभी भी थोड़ा टाइम है 5 मिनट दे ना बाद में बात करती हूँ तो वो जो 5 मिनट होते हैं वो ना ऐसे लग रहे होते हैं 5 घंटे मांग दिए या 5 दिन मांग दिए हमने I don't think फाइन so. Men do this much. Girls do it a lot. when a situation is this Rohit then you will realize it because जो men की जो possessiveness होती है that is on a different level नहीं you होती know है बट ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई मैन ऐसा that करेगा was कि just a situation but the talk to me. possessiveness is It different is isn't both it ways. When you talk it is about both ways emotional upheavals, girls can also really take it to a tall task for men. yeah So it's not just one way. It is it's not both one ways. it's like Emotional, girls but Ashima men. the गर्ल्स आर लाइक कि व्हेन दे आर कॉलिंग एंड द मैन एंड द बॉय इज नॉट पिकिंग तो वो स्पैम ही कर देती हैं फोन कर करके मैसेजेस कर करके कहाँ हो क्यों नहीं उठा रही हो कितनी देर हो गई है 5 मिनट हो गए बोला तो था 2 मिनट हो गए हैं उठा क्यों नहीं रहे हो कहाँ हो मतलब बताओ तो स्पैम हो जाता है बिल्कुल राइट I can give you a case on this. I knew this female when she got married. सॉरी And even आशिमा बट आई एक्सप्लेन द फीमेल वाला एंड यू कैन प्रेजेंट योर दिस थिंग No. बिफोर आई लूज As इट we are having a discussion, we have to balance because when you talk about this thing that a woman or a man, see, it is very individual. हर किसी के अपने इमोशनल टैंट्रम्स हैं अपने इमोशनल नीड्स हैं एंड द नीड्स ऑफ अ वुमेन आर ऑलवेज bigger and they are much more complicated than men. The needs of men are limited, but yes, how a woman processes it makes it is very easy to tame a man by a woman because a man is a product of a woman. उसकी माँ उसकी बहन उसकी वाइफ उसकी बेटी they can really dominate a man if they really know how to take him on. But for a woman to get dominated, yes, we are talking of a society wherein women are programmed in the ways जैसे कि रोहित ने बोला कि शादी करने के लिए बोलती हैं क्योंकि यही बोला जाता है कि अगर आप किसी रिश्ते में हो तो भाई आप उससे शादी करना छोड़ना मत. But now things are changing on that platform also. Go on. Okay, then I was explaining कि males का जो है it's like when they are not getting enough attention, they are not meeting, getting their emotional needs fulfilled and all possessiveness. But whereas females, they are often look for their expectations, you know. वो हमेशा एक तरह से ना what a good partner should do, how they should behave. गुड पार्टनर कैसे होते हैं उनको क्या करना चाहिए ये वाले जो फैक्टर्स है जहां उनकी एक्सपेक्टेशन वहां मीट नहीं कर रही होती हैं आई डोंट नो सबके इंडिविजुअल अलग पैरामीटर स्टैंडर्ड सबने बनाए क्या होते हैं अलग आई अपने वांट टू आस्क कि क्या कमिटमेंट ही डिफाइन करेगा यू आर अ गुड पार्टनर और समथिंग दैट डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन रोहित आपका अपने Yeah, very पार्टनर right. से कम्युनिकेशन कैसा है बॉन्ड कैसा है कितने लेवल पर है यू नो द उसका और जो आपने एविडेंस अपने होगा रिश्ते के अंदर क्या गाइडलाइंस ड्रॉ किए हुए हैं क्या या आपने शुरू से ही उस लड़की को ये बोला है लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड बाय वील सी इफ वी आर रियली अ कपल मेड फॉर ईच अदर फॉर लाइफ या आपने पहले दिन से ही कह दिया चल भाई आजा मैं तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा सो दैट रियली डिफाइंस कि लड़की का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है शुरू से So it's like that.
उनका ऐसे ही होता है कि कम्युनिकेशन गर्ल्स को आई फील फीमेल्स दे वांट टू कम्युनिकेट मोर, ऐसे एक ही टॉपिक को ना पूरा डिस्क्राइब करके डिस्कस करके कहीं जाना है या कुछ करना है, वे तो मेल लाइक कि अच्छा जाना है ठीक है चले जाना हो जाएगा डन। अरे पहले पूरी तरह बात करो बैठ के, मेरे को जाना है मेरे को करना है या तुम आओगे तुम जाओगे पहले बताओ, डिस्क्राइब करते हैं बात कर लेते हैं। बट मेंस आर देयर क्वाइट क्लियर और समथिंग, तो ये कम्युनिकेशन है फीमेल पार्ट बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है थोड़ी, See, why is देयर। it that the best of the male friends may not know the biggest secrets or emotional problems or the relationship problems of their friends, whereas women can cry their hearts out with their women friends about their relationships? एक लड़की अपने रिश्ते की हर प्रॉब्लम को लेकर अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करके उसके ऊपर रो धो लेती है, पूरी महाभारत रामायण हो जाती है उसके ऊपर, मगर जब आप लड़के की बात करते हैं तो दे आर नॉट रियली एबल टू एक्सप्रेस टू देयर फ्रेंड्स ऑल्सो, they are not really able to emotionally express. Now things are changing. Yeah, this is also But a problem you have just recognized कि जब फ्रेंड्स वगैरह का आउटपुट दे टेक सो मच एंड दैट इज द मोस्ट ट्रिगरिंग पॉइंट इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक सो। इसीलिए रिश्ते के में आप दोनों के रिश्ते में कितना आप स्ट्रांग हैं, आपने क्या गाइडलाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, आप एक दूसरे को कितना समझते हैं, आपका कम्युनिकेशन किस लेवल का है, ऑल दैट मैटर्स। अगर वो सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, वेवलेंथ नहीं है, डजंट एक्चुअली मच अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। वुमेन्स डू अ लॉट विद देयर, वो बाय नेचर। That's right. That's actually very correct statement you're saying, Rohit. Even if you're talking about the couples and all, they don't discuss that much. If you're talking about the male part or a husband, they don't discuss about their wives, okay, and the personal things. Whereas if you talk about girlfriends and wives, they do. so that's Discuss. wrong na, that should be No, it's not about wrong and right. We cannot actually say कि ये गलत है बहुत, क्योंकि कई बार होता है ना जिसके हम हमेशा बात करते हैं आशिमा की पर्सपेक्टिव, जहां से मैं खड़े होके Exactly. देख रही हूँ सिचुएशन जो है, जो सराउंडिंग्स है या जो जिस फेज से हम निकल रहे हैं, मुझे वो जो मैं कर रही हूँ वो सही लग रहा है, पर जहां तुम खड़ी हो और तुम जहां से देख रही हो तुम मुझे कह रही हो अरे ये गलत हुआ है। Women love to Right. take a perspective. They don't have that ego, Rohit. Yes, बट उनका एक्चुअली थर्ड पर्सन आपका आपकी जो लाइफ में कंडीशन है उस पर पर्सपेक्टिव नहीं दे सकता, बिकॉज ही इज नॉट ऑन योर प्लेस, ही कांट गिव यू पर्सपेक्टिव, तो व्हाई यू आर वहीं टेकिंग पर पर्सपेक्टिव। सामने वाला जो दोस्त है, देखो एक थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर ऑन लुकर हमेशा डिटैच तरीके से, अगर वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है फ्रेंड्स और वो आर डिटैच ऑल, है, आई थिंक फ्रेंड्स आर ऑलवेज बायस्ड, दे आर नॉट। अगर बायस्ड ओपिनियंस आएंगी तो रिश्तों में ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी रोहित। होती हैं उनकी, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स टू देम, नॉट मी ना, दैट्स व्हाई। So that is रोहित why. आई गेस यहीं पे कम्युनिकेशन जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब एक रिलेशन शुरू होता है तो पहले आप फ्रेंड्स बने, फिर आप एक दूसरे को समझने लगे, फिर वो अट्रैक्शन और फिर वो लव और रिलेशनशिप शुरू हुआ, या फिर पहले आपने एक दूसरे को देखा एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ, आपको अट्रैक्शन हुआ, इन्फैचुएशन शुरू हुई और फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ा, क्योंकि इन दोनों ही चीजों में बहुत फर्क होगा रिलेशनशिप में। एक वो कहते और हैं ना सहज अर्चिका, पके सो मीठा होए, तो एक फ्रूट जो धीरे धीरे पक रहा है और फिर उसका पता चल रहा है कि कौन सा पार्ट कब पका कौन सा कच्चा था, थोड़ा किस तरह से हुई कुकिंग, बट एक जो आपको पका हुआ ही मिल गया, मे बी द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, बट एक रिलेशनशिप जो जहाँ पे कम्युनिकेशन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा और अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर अपना अच्छा पार्ट। वैलिड पॉइंट अर्चिका ये है कि क्या लड़की भी गोल ओरिएंटेड है, क्या वो भी करियर ओरिएंटेड है, या उसका सिर्फ गोल यही है कि उसको अगर एक अच्छा लड़का मिल गया है तो माँ बाप से मिलवा के शादी कर लेनी है, अब लड़के के सिर पे सब कुछ डाल दिया, शादी हो गई, लड़का ख्याल रखेगा। अगर वो लड़की का थॉट प्रोसेस वो है रोहित, तो वो डेफिनेटली कमिटमेंट मांगेगी, क्योंकि वो अपने करियर, अगर आप बात करो टुडे, वही रहता है बहुत सो का। हाँ, सो जब आप आज की लड़की की बात करते हो जो गोल ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, तो वो पुश नहीं करेगी कि भाई चलो कमिट करो, शादी 2 साल में करनी है कि 3 साल में करनी है या 1 साल में करनी है। वी हैव बट आर वी एक्चुअली डूइंग दैट आशिमा?
आर वी एक्चुअली डूइंग दैट कि एक ही बार में हम कमिटमेंट मांग लेते हैं और पूरी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं? आई डोंट थिंक ऐसा फीमेल्स होता आर है अर्चिका, डूइंग, बहुत जगहों पे होता है ऐसा. बट इट वहाँ इज बहुत अगेन, सारे फैक्टर्स एनालाइज किए होंगे पहले ही. ऐसा नहीं है कि एक बार मीटिंग हुई, 2 बार मिले, 3 बार मिले, 6 महीने. लड़कियां अर्चिका अभी भी, इफ यू टॉक अबाउट गर्ल्स, हमारे समाज में अभी भी लड़कियों को ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है दैट अगर आप किसी रिश्ते में हो, किसी लड़के के साथ हो, लेट हिम बी द फर्स्ट एंड लास्ट, शादी करनी है उससे. मगर वहीं पे शायद रिश्तों की गहराइयां खत्म हो जाती हैं. रिश्तों को एक दूसरे को समझने का जो एक चांस है, एक पैटर्न है, एक पॉसिबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है. वी हैव दिस जेंटलमैन Rishi, what is that? Riddhi? No, this is Ruchi रुचि. Sharma. Ruchi. Yeah, रुचि. Yeah, Ruchi, yeah, go ma'am. on. Good afternoon, first of all. Good गुड afternoon, आफ्टरनून. dear. हाँ, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक पे, then I really want to add something to ma'am. Go on, dear. Yeah, मैम एक्चुअली हाँ, आज की जो सोसाइटी है वो आपको एक तरीके का प्रेशर दे रही है. इवन आपके पेरेंट्स भी आपको प्रेशर देते हैं. इफ यू आर विथ एनीवन and you want to some time to understand him or her, or this thing actually your parents know, that time really we face a lot. क्या होता है कि आपको ने अगर बता दिया, they really want कि वो चलो चल रहा है, the last point marry will be, but होता क्या है कि ना अगर आप किसी रिश्ते में भी नहीं हो और आप शादी कर लेते हो तो मे भी हो सकता है कि आप उसे, आपके लिए वो बहुत बड़े जगह, मतलब बहुत बड़ा इश्यू बन जाए. आप कंफर्टेबल ना हो, और हो सकता है पार्टनर के अंदर ही कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो. एंड दैट टाइम अगर आप उस चीज से हटते हो तो भी आप लकी हो अगर आपके पेरेंट्स और आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं. सोसाइटी तो फिर भी आपको गलत समझेगी, बट ऐसा नहीं है सभी एक जैसे होते हैं. बट ज़्यादातर यही होता है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ बिफोर सोसाइटी व्हाट एग्जैक्टली यू आर. बहुत सारे एग्जाम होते हैं. अगर वही चीज़ आपके साथ सेकंड टाइम हो जाए कि आप विश्वास के साथ, वही प्रेशर के साथ, नहीं यू कैन नॉट मेक एनी रिलेशनशिप एंड यू कांट गिव सो मच टाइम, व्हाट others will say for you about you and what they think about us. हमारे घर में बच्चा है, वो क्या होगा, उसका क्या होगा, फलाना फलाना फलाना. And with this pressure, if you do second time, I mean you get married second time and again it happens with you, which cannot be ignored by you. If you face this kind of situation, you cannot ignore and you need to leave. अदरवाइज यू विल फील मेंटल प्रॉब्लम. आप जरूरी नहीं है ना कि आप अगर उस चीज को निभाने चले हो तो आप निभा ही लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेंटल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर होता है. या रुचि, आपने जो बोला ना, पहला रिश्ता, सेकंड रिश्ता, और अब पहले रिश्ते में भी शादी करी फिर डिवोर्स हुआ, यही बोल रहे हो? राइट. और सेकंड में भी, तो इसका मतलब उस इंसान को पहले रिश्ते के बाद ही थोड़ा थम के सोचना चाहिए. अगर क्योंकि उसको आपने फिर मतलब उस सिचुएशन में तो नहीं, आप में प्रॉब्लम होगी अगर दोनों रिश्ते आप कंटिन्यू नहीं कर पाते शायद. let me say that in a little more appropriate manner, Rohit and Ruchi. Wow, both are wonderful. No, that's okay. क्योंकि कई बार हमारे जो शब्दों का चयन होता है ना, वो बहुत important होता है. Because as we keep saying that this is a platform where we are not trying to hurt anybody, we are not trying to judge anybody, we are not trying to criticize anybody. We want to give an open space where people can talk and get solutions. रुचि, जो आप बात कर रहे हो ना बच्चा, उस सिचुएशन में अगर आपने पहले शादी करी, पहले तो आपको ये, आपकी बात बिल्कुल सही है. एक लड़की को अभी भी ये ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे समाज में बहुत कुछ हो रहा है, मगर आज भी जब हम एक लड़की की बात करते हैं, उसके प्रेशर्स अलग होते हैं, लड़कों के प्रेशर्स अलग होते हैं. और एक लड़की जैसे ही 22, 24, 25 के ऊपर जाती है तो फैमिली के लोगों को ये लगता है कि भाई इसकी तो शादी हो जानी चाहिए. इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी लड़की है
वो अपना एक करियर, अपना एक गोल जरूर बनाए ताकि उसको अपनी जिंदगी जीने के लिए उसका जी मैम पहले मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं क्योंकि मेरी बात पूरी हुई नहीं थी और रोहित अच्छा ने मुझे चलो, आप कैसे बोलो बोल बोलो, दिया आप था। बोलो, आप बोलो बोलो। देखिए मैम, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो पहली मैरिज हुई थी वो हाँ। एक्चुअली मैट्रिमोनियल से हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल डिस्टरबेंस था विच इज़ नॉट अकर्ड बाय मी। आई इवन मैंने जो टाइम दिया बिकॉज इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू ओवरकम this kind of actually situation I felt. I got 5 years. ठीक है, उसके बाद within a time I just improved myself. I got a job. I work hard, and I was getting a handsome salary. And when I think that I can continue or I can give a second chance, then but उसमें भी ये हुआ कि मैंने वो सोचा कि नहीं यार, मैं अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा टाइम दूं किसी को, और मैंने सोचा कि नॉन में करना चाहिए जो भी मतलब फैमिली बताएगी और जो नॉन में होगा। अब वो नॉन में भी करा, फैमिली के साथ भी मतलब सभी जानते हैं, सभी अच्छे से सब कुछ था। बट व्हाट आई फेस, there's medical issues with him. Medical issues as in? It's not a just medical issues. Actually, I can't say It's okay, it's clearly. okay. Okay, now Ruchi, we don't can describe. we can understand. Okay, go on. Yeah. So I just wanted to say that if you clear everything before marriage, at least we cannot take this decision, or I cannot take this decision. But after a 1 month, I got to know that there's actually this problem actually he hidden, and his family hidden from me, and this is a kind of actually धोखा, right? So अगर आपको पता है कि आपके साथ धोखा हुआ है इतना बड़ा और वो आपको बताया नहीं गया, देन हाउ यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद दैट। अगर वही चीज लड़की के साथ होती है तो कोई नहीं करना चाहता, उसकी फैमिली भी चढ़ जाती है। Here the same thing, I'm really happy that I got my family who supported me a lot, right? They are with me, and they are even file the case on them, right? But exactly, I just want to say that nobody actually is actually कभी भी कोई भी इन रिश्तों को ना बिना सोच के नहीं बनाना चाहता। बहुत सही कह रही हो। बट अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो मैं ये नहीं कहती कि ये सब मेरे साथ हुआ है, बट मैं कहती हूँ ये एक्चुअली में हो रहा है मैम, क्योंकि मेरी सोसाइटी में मैम जब ये वाली चीज हुई ना मेरे साथ, तो मैंने ये नोटिस किया कि एक और मतलब शादी अभी हुई थी हमारे यहाँ, और उसमें क्या हुआ उस लड़की के साथ, वो भी मतलब 25 26 की होगी मैम, और उसके साथ हुआ कि एट द फर्स्ट नाइट ना ही एक्सप्लेन ही सेड टू हर दैट ही इज अ गे। तो शादी क्यों किया उसने? मैम इवन उसके फादर ने 50 लाख खर्च किए हैं उस शादी पे। बट मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे खुशी है कि मैं इस सब चीजों को शेयर कर सकती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बिकॉज इफ आई एम राइट। इसीलिए रुचि आजकल एक कंसेप्ट है फ्री। गो ऑन रोहित। That's why actually we date. You have a relationship before marriage and don't give commitments so early. That's why Rohit, I tell you one thing why I am discussing about all this, why I am sharing this, because somewhere I was in pressure by the family and by the society. If अगर मैं ऐसे ही Ruchi, घूमने if लगूं you ऐसे don't ही mind, can I support, not support, but can I explain something to Rohit? Yeah, sure ma'am. Okay, so Rohit, इतना सब कुछ जो रुचि ने हमसे शेयर किया, उसमें आपने जो अभी ऐड किया है, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, बट उसमें कहीं भी कमिटमेंट उसने मांगा ही नहीं किसी से, क्योंकि उसको वो टाइम ही नहीं मिला कि वो किसी से कमिटमेंट मांगे। वो जो बात कर रही थी वो सोसाइटी प्रेशर, अपनी सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट, अपनी फैमिली, वो ऐसे फैक्टर्स के ऊपर बात कर रही थी जहां हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है। जहां हम चाहते तो हैं, हम सोचते भी हैं, हम एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, हम मन में उम्मीदें भी रखते हैं, बट वहां पे जाके हमें बाद में रियलाइज होता है कि कंट्रोल चाह रहे थे बट था नहीं, और जब होता नहीं है तो रिजल्ट पता चलता है।
this is not a one time I'm It's a hearing classic this. case of anger and disappointment का, right? क्लासिक केस तो नहीं कहेंगे आशिमा, बट हाँ ये काफी चीजों का केस है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जो मतलब बहुत सारी चीजें सही हो सकती थी पर नहीं हुई, नहीं हो सकती थी पर कर सकते थे। आई मीन बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो नोन नहीं होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो साथ साथ काम कर रही होती है, दिखती नहीं है। No, हम I think सोचते that is हैं। what, when she talks about erectile dysfunction and when you talk about the relationship problem, I think when you talk about premarital counseling और एक लड़का लड़की जब बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं, absolutely, this is something which people would not want to come out in the open or something. और लड़की के साथ हो या लड़के के साथ हो, कोई भी माँ बाप इसको खुले में नहीं बताते हैं। बाकी ये अलग बात है कि इलाज, हर प्रॉब्लम का इलाज हो सकता है अगर एक इंसान विलिंग है और एक इंसान एक्सेप्ट करता है कि मुझ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक इंसान ये मानने को ही तैयार नहीं होता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। रुचि, रुचि, हाँ, गो ऑन बेटा। मैम इस पे मैं कहूँगी, जब मैंने उनसे पूछा कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर विद मी, ऑल द टाइम ही रिप्लाइड नो आई डोंट नो, यू नो देन यू जस्ट से। मतलब अगर आप जानते हो आप बोलो, मेरे को नहीं पता। और जब ये चेकअप के बाद आई बात बाहर, तो भी उन्होंने ये बोला कि ये मेरे को नहीं पता था। इवन उनकी फैमिली बोला ये मेरे को नहीं पता था। इट मीन्स ना कि दिस इज, अगर आपकी चोट भी लगी होती है ऑफ कोर्स आपको पता होता है। आप इतनी बड़ी चीज़ हो रही है आपको पता ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप वहाँ गलत हो जहाँ आपको पहले शेयर करनी चाहिए थी। इफ समवन वांट्स टू मैरी देन ऑफ कोर्स वो वैसे भी शादी करेगा, क्योंकि आजकल हर जगह ना हर चीज़ का इलाज है। बट प्रॉब्लम क्या आती है मैम कि यार आपने वो चीज़ छुपाई, आपने वो चीज़ धोखा दिया। क्योंकि जब आप किसी को धोखा देते हो, आप चीज़ छुपाते हो, तो समवेयर ना यू फील गिल्टी। रुचि, आपकी इस बात पे बिल्ड करना चाहूंगी। आपने बोला, उस इंसान ने बोला मुझे नहीं पता और मेडिकल के बाद पता चला। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको नहीं पता था, बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग, फॉर देम टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप इज नॉट अ प्रायोरिटी। At the age of 43, how is it possible? Because I concerned with the scientists, even with the doctors, that is possibility that he is not, he doesn't know. No, everyone is saying that Ruchi, I'm sorry to say this, dear, but there are many kind of medical conditions which we are not aware in our body. You are talking something, and we are dealing with all those patients right now. When we talk about the IVF thing, no, कई लोग पता है IVF पेशेंट जो होते हैं वो आ जाते हैं, बट उन कपल्स को यही नहीं पता होता what is actually a procedure of having a intimate this thing, having Relationship. what is the relationship. But मैम मैं तो there are couples they are saying कि हमें IVF कराना है, फिर जब टेस्ट होते हैं, सारे क्लिनिशियंस टेस्ट करते हैं, सब कुछ डिटेल में जाते हैं, they are saying कि ये तो हुआ ही नहीं है। प्रॉब्लम वुमन में होती ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज इन द मैन ऑफ एरेक्टाइल डिसफंक्शन। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये चीज तो मैम ये पॉसिबिलिटी तब होती है जब आप ना यंग एज में होते हो, राइट? आई एम 40. Was he married earlier, this guy? No, ma'am. This is the second time I gave my chance. No, I'm not talking about you, Ruchi. I'm talking about that man. Was he married earlier? No, ma'am. He was not. Was he in a relationship? Yeah. No, ma'am. So how would he know it? He said so. Did he ever sleep with the woman? Did he ever have a relationship? I don't know, ma'am. He never shared about his past life. So there can be cases of Ruchi, because it's not that every man is rushing into a relationship. Age is no bar, my dear friend. उम्र के हिसाब से रिश्ते नहीं बनते हैं। अगर होते तो फिर तो there are people, रुचि, जिनको सच में रिलेशनशिप्स के और फिजिकल कांटेक्ट के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। सो यू कैन ऑलवेज गिव समबडी एन एलिमेंट ऑफ डाउट, बट यस, आपका मन मानना चाहिए और वो इंसान सच में सच बोल रहा है कि नहीं। अगर आप दोनों के बीच में, हाँ मैम, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ना हम ना उस इंसान के ऊपर उसकी स्टेटमेंट्स पे ध्यान देने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक
example Vansh is talking about avoidant attachment. We'll have to understand it from a different perspective, Vansh. When you talk about attachment, attachment, and when you talk about a physical thing, it is different from avoidant attachment. क्या वो आपके पास नहीं आना चाह रहे थे और he could not perform, Ruchi? Yes, you can say that he tried, but somewhere So there can be इसमें भी Ruchi, there can be a psychological issue with him or there can be a physical. So it can be both ways. मैम डॉक्टर ने बोला है क्लियरली कि साइकोलॉजिकल भी है और यहाँ पे जो चीज उनके साथ है वो चीज ऐसी है कि you can not avoid. So trauma, I think probably. Ashima, but I want to ask Ruchi now, are you out of all this now? Are you leading a good life? मैम मैं तो अभी अपने घर पे हूँ, मैंने तो वो छोड़ दिया ना उनको. Okay, so अभी मूव ऑन कर गए ना आप? अभी मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है. You are in a process, no? Are you trying? मैम मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ छोड़कर अभी बैठी हुई हूँ, बट मेरा रिश्ता अभी टूटा नहीं है. Like I am in process actually. Do you want to try it out? Do you want him to get his tests done, treatment done, get his already test आ चुका है मैम, already test आ चुका है. नहीं, टेस्ट के रिपोर्ट्स के बाद साइकोलॉजिकली और फिजिकली अगर इलाज हो जाए तो चीजें ठीक हो जाती हैं. रुचि, बात वो नहीं है मैम, बात वो नहीं है. बिकॉज क्या हुआ था, जब मैंने शादी हुई थी और उस समय मैंने जब नोटिस किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस टाइम मैंने सपोर्ट किया था. और उस टाइम पीरियड में जब मैं सपोर्ट कर रही थी और ये सब बातें जो भी थी वो हमारे बीच में थी, बट एग्जैक्टली मैं वो नहीं जानती थी कि यहाँ पे इतनी बड़ी बात है. तो भी ना क्या हुआ कि जब हमारा प्लान था फॉर हनीमून, उसी दिन एक्चुअली मुझे पता चला कि जस्ट बिफोर 2 or 3 days he called his brother and whatever he said to his brother, that was really a shocking, because उन्होंने उनको वो बोला कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो मेरी साइड से हो रही है. I mean I am not supporting him, even I want कि मैं दूर रहूं. तो उस चीज ने मुझे हिला दिया कि अभी तो मैं मतलब सपोर्ट कर रही हूँ और मुझको ये मिल रहा है. तो फिर इट मीन्स ना कि हर टाइम मैंने देखा कि बीच में भी मैंने नोटिस किया कि वो झूठ बोल रहे हैं. उसके बाद जब चेकअप हुआ, तो उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो फिर पता चला कि यार अकेले ये नहीं बोल रहे हैं झूठ, यहाँ पे तो सभी को पता है. So रुचि, अभी करंट सिचुएशन में आप क्या चाह रहे हो? व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? अभी माइंड ऑफ स्टेट आपका क्या लग रहा है? सबका अपना नेचर होता है, मेरा भी नेचर है. मैं कभी Okay, Vansh has a beautiful thing to say that a man does not need to be raised by a woman. That is his mother's job. Absolutely. Ruchi, you'll have to come back again tomorrow, dear. There is a lot which we have to talk and ask. And thank you, everybody. Archika, I think we need to sign it off. Vansh has a beautiful thing to say. A man and a woman relationship, a romantic relationship, is not trying to change each other or trying to make the other person, fit or adjusted for you. It's about accepting, acknowledging, and acting on being together and making things happen together for each other instead of trying to. I remember that movie. Which was that movie? Farhan Khan and this one, Hrithik Roshan and all. So a girl should not try to change a man should not try to change. They should try to live together for good and try to see what is the best. Thank you very much. God bless you all.